Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 15 February 2021, and I am teaching you chapter number 16. And name of the chapter is Weather and Season. So, student, now we have already let do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you what is the difference between a weather and climate. Is it clear? What is the difference between a weather and climate? This we have already discussed in the previous video. And next thing which I explained you in the previous video, that is a water cycle, and this process is a continuous. Next is water cycle, and this process is continuous. Okay, and this process take place due to heat of the sunlight. This process take place due to the heat of the sunlight. So these two topics I have already covered in the previous video. If you want the explanation, you can watch the previous video. In that video I covered two topics, that is difference between weather and climate, and another thing is that what is water cycle. Now student, in today's video we will talk about the different types of a seasons which are in our country, like summer season, winter season, monsoon season, spring season, autumn season. So student, we have 5 different types of seasons in our country. And what is the definition of a season? You can note down from the board also. When the weather remains more or less the same for a few months in a year, it is called it season. ठीक है. When the weather remains more or less, ज़्यादा भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है. ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंट सीजन्स की बात करेंगे तो फ्यू सीजन्स आर लॉन्ग एंड फ्यू आर वेरी शॉर्ट सीजन्स, लाइक स्प्रिंग एंड ऑटम. बोथ आर वेरी शॉर्ट सीजन, so that we will discuss. So the definition of a season is when the weather remains more or less the same for a few months in a year is called it a season. Currently अभी अगर हम लोग वेदर की बात करते हैं बेटा,
तो अभी कौन सा वेदर चल रहा है, डेट इज अ विंटर। ठीक है, लगभग नवंबर के लास्ट से हमने स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दिए थे। नवंबर ओवर, दिसंबर, जनवरी और नाउ इट इज फरवरी। सो अभी भी हम लोग स्वेटर वेयर कर रहे हैं। ओके, सो अब देखो, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ ए नवंबर, देन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो फॉर दीज 3 months, 3 or more than 3 months, द वेदर इज सेम। ठीक है, आप देखो ठंडा विंटर में कभी कभी होता है, कुछ दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कभी कम होती है, लेकिन अभी भी इतनी ठंड है कि हम लोग स्वेटर वेयर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ यूज किया था वर्ड मोर और लेस। इज इट क्लियर? मोर और लेस वर्ड इसीलिए यूज हुआ था। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, अब करेंटली हमने अभी किसकी बात की, विंटर की। जैसे नवंबर के लास्ट में हल्की ठंड स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सो then the month of December, January, and now is current month is February, and even now also we are wearing the sweater. So when the weather remains more or less the same for a few months in a year, it is called a season. इसी को season बोलते हैं। And when we are talking about the different kinds of season in our country, then the name of these seasons are, then the name of these seasons are, what are the name of this season? That is summer season, winter season, spring season, autumn season, monsoon season. These are the different names of the season. So one by one we will, or I will explain you all the seasons one by one. Now let's start with the winter. Okay, we will start with the winter. And another most important things about the season, that these season also affect our way of living. Yeah, this season also affect our life. How? The clothes we wear. अभी देखो आफ्टर 1 month लगभग समर आने, मार्च के एंड के बाद अप्रैल से बहुत सीजन धीरे धीरे क्या होने लगता है, हॉट होने लगता है। तो वो क्या है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द समर। ठीक है, सो इन डिफरेंट सीजन वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। So that is the reason season also affect our life also. According to the season we are wearing the clothes also, and even student, the food we eat, that is, there are some changes you will find in that also. The food we eat in the different seasons. ठीक है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, विंटर चल रहा है। इस समय में कोल्ड ड्रिंक अच्छा लग रहा है? नहीं। चिल्ड वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं? नो। सो हमारी वे ऑफ क्लोथ्स वी वेयर एंड इवन आवर ईटिंग हैबिट्स आल्सो चेंजेस ड्यू टू दीज डिफरेंट सीजन्स। ओके, नाउ लेट स्टार्ट विद द विंटर। See, the winter is very cold. Okay, this is the cold season of the year. पूरे ईयर का जो सबसे कोल्ड सीजन है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर। सो विंटर इज अ weather is at what happen, what type of condition of the weather, at this time the weather is very cold in the time of winter season. Is it clear? So in winter, first point हो गया weather, weather is cold. This time what is the condition of the weather? Weather is cold. Another point, it begins around the middle of November and continue till February. So it begins middle of November, middle of November
and continues till February. Next important point about this, what happen at the time of winter. स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब विंटर होती है तो डेज क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और नाइट्स क्या हो जाती हैं, लॉन्ग होने जाती हैं. इज इट क्लियर? सो इन द विंटर सीजन द डेज आर short. The days are short and the nights are long. ये चेंज आप ऑब्जर्व करते होगे विंटर में. ठीक है, जब विंटर आने लगता है तो स्लोली विंटर आ गया, इसका पता डेज के शॉर्ट और नाइट्स के लॉन्ग होने से भी पता चल जाता है. ठीक है, ठंड तो लगती है, वेदर ठंडा होगा तो हमें वो भी फील होता है विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन. सो द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट आर लॉन्गर. एंड इन द माउंटेन्स एरिया, ठीक है, प्लेन्स में तो बेटा जनरली ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो हिल स्टेशन एरिया है, माउंटेन रेंजेस हैं, जब आप क्लास 4th में आओगे तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा. सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो हिमालयस है. उसके कुछ पार्ट हमारी कंट्री में भी हैं, नेपाल में भी हैं, ठीक है, भूटान में भी हैं. तो ये सबसे हाईएस्ट रेंज है हिमालयस की, क्योंकि जो आपने कभी जीके में पढ़ा होगा विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो वो है हिमालयस रेंज का सबसे ऊंचा माउंटेन है आपका माउंट एवरेस्ट. एंड दिस माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल. ये माउंट एवरेस्ट बेटा कहाँ है, ये नेपाल में. ठीक है, तो जो बेटा जो इतने हाइट वाले, सबसे हाइट वाले जो माउंटेन्स होते हैं ना, अगर आप इस रेंज के बारे में डिटेल में, अभी आप 4 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा, 5 से थोड़ा डिटेल आने लगेगा, तो फिर भी आपको बता देता हूँ. ये माउंटेन्स क्या है, बहुत हाइट है. एवरेज हाइट इन माउंटेन्स की 6000 मीटर से ऊपर है. 6000 मीटर से ऊंचे पहाड़ हैं ये एवरेज हाइट मैं बता रहा हूँ कि सबसे छोटा इस रेंज में सबसे कम हाइट का अगर कोई माउंटेन होगा तो वो भी 6000 मीटर तो ऊंचा होगा ही होगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पे क्या है, वेदर बहुत कोल्ड है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है. ठीक है, टेम्परेचर माइनस में होता है. आप लोग आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके फादर लोग भी आते होंगे जब हॉलीडेज में, तो आप लोग को बताते होंगे जिनके जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग होती है, तो वो अपने फैमिली को बताते होंगे यहाँ टेम्परेचर इतना लेस होता है कि जो सारे जो माउंटेन्स है वो किससे कवर्ड हैं, स्नो से कवर्ड होते हैं. ठीक है, क्योंकि वाटर का मैंने वाटर साइकिल पढ़ाने में आपको बताया ना, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. जब बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है, कोल्ड होता है, आप इसका सिंपल एग्जांपल देखना चाहते हो, सिंपल आप वाटर लो, अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रख दो. आफ्टर 3-4 आवर्स व्हेन यू ओपन द रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर को आप ओपन करोगे तो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर का टेम्परेचर बहुत लेस होता है. तो दैट इज द रीज़न वाटर चेंज इन द सॉलिड फॉर्म. तो ये जो एरियाज हैं ये पूरे ही स्नो से कवर्ड रहते हैं द होल ईयर, एंड द टेम्परेचर इज वेरी लेस. 0 डिग्री से लेस टेम्परेचर यहाँ होता है. इसलिए यहाँ के माउंटेन्स क्या बिल्कुल वाइट लगते हैं देखने में, बिकॉज वाइट कलर वो शाइन, जब उस पर सनलाइट पड़ती है ना, वो इतने अच्छा ब्यूटी लगती है ना, दे शाइन व्हेन दे शाइन एट द टाइम ऑफ ए सनलाइट. ठीक है, तो क्योंकि वो क्या शाइन है, क्योंकि जब सन की लाइट पड़ती है तो जो स्नो है वो चमकती है. इज इट क्लियर? सो जो विंटर्स है, विंटर स्पेशली इन द माउंटेन्स एरिया में बहुत स्नोफॉल होती है. ये आपको प्लेन्स एरियाज में नहीं देखने को मिलेगी, ये आपको माउंटेन्स एरिया में देखने को मिलेगी. ठीक है, अब नेक्स्ट है, पीपल लाइक टू स्टे इनडोर्स व्हेन द कोल्ड विंड ब्लो. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स दैट, देखो ठंड जब बहुत, देखो जब हिमालयाज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो जब उस हवा को
उस बर्फ को टच करके जब हवा बहेगी तो वो क्या होगी, बहुत कोल्ड होगी। ठीक है, तो स्पेशली आपने देखा होगा कि ठंडे के दिनों में हम लोग अपने डोर्स विंडोज हमेशा क्लोज रखते हैं। व्हाट इज द रीजन? जिससे कि कोल्ड एयर हमारे घर में ना आए। ठीक है, अगर कोल्ड एयर आपके घर में इंटर करती है, जैसे आपने देखा ना समर्स में हम लोग हमेशा विंडोज ओपन रखते हैं। ठीक है, लेकिन विंटर्स में इसका टोटली ऑपोजिट होता है, डोर्स विंडोज हमेशा क्लोज रहते हैं, सो डैट द कोल्ड एयर या कोल्ड विंड डज नॉट कम इनसाइड आवर हाउस। ओके, और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए वी वियर वुलन क्लोथ्स। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट पीपल लाइक टू स्टे इंडोर व्हेन द कोल्ड विंड ब्लोज। ठीक है, सो एंड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द कोल्ड व्हाट वी डू, वी वियर वुलन क्लोथ्स। ठीक है, ऊन वाले कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स, एंड एंजॉय, एंड स्पेशली इन द टाइम ऑफ ए विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम लोग को हॉट सूप ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, मिल्क भी हॉट करके पी सकते हो आप, टी है, कॉफ़ी है, टोमेट, तो ये सब आप लोग, टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है, सूप, ये सब आप लोग, ठीक है। आप लोग किस सीज़न में हॉट सूप आपको कब अच्छे लगते हैं? विंटर के समय। ठीक है, और देखो विंटर मैंने बताया ना, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एट द टाइम ऑफ ए विंटर सीजन वो एक लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा हाइबरनेशन। और इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल एनिमल्स के बियर, लिजर्ड, स्नेक, एक्स्ट्रा। ठीक है, सो we wear woolen clothes enjoying more. Some animal like bear go on their long winter sleep. This is called, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, तो बियर और लिजर्ड आप कह सकते हो। बियर लिजर्ड जो छिपकलियां होती हैं, जो हमारे अनवांटेड विजिटर हैं। आप कभी जाओगे कि आपके घर में कॉकरोच आए, हाउस फ्लाइज आए, लिजर्ड आए, ये अनवांटेड विजिटर्स हैं जो बिना बुलाए हमारे घर में आ जाते हैं। रैट है, ठीक है, सो क्योंकि इनसे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये हमारे घर में आए। ठीक है, तो एनिमल्स लाइक बियर है, लिजर्ड है, ये सब लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं। एट व्हाट टाइम? एट द टाइम ऑफ ए विंटर। और इस लॉन्ग स्लीप को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि विंटर सीजन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया। स्पेशली वेदर कैसा होता है विंटर में? वेदर इज कोल्ड। ठीक है, एंड व्हेन इट स्टार्ट, इट बिगिंस इन द मिडल ऑफ नवंबर। नवंबर के स्टार्टिंग से नहीं हो जाता है, मिडल। मिडल मतलब 15 हाफ हुआ, 30 डेज का मंथ है, तो लगभग 15 के बाद से हल्की कोल्ड स्टार्ट होने लगता है, मिडल ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग, द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर बिग्स, और देयर इज स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ विंटर द विंड जो ब्लो करती है वो भी कोल्ड होती है, इसलिए स्पेशली इन द विंटर सीजन हम अपने घर के डोर्स और विंडोज हमेशा क्लोज रखते हैं, सो डैट द cool air does not come inside our house, and to protect our body from the cold we also wear woolen clothes। और देखो आज तो हमने अपनी लाइफ को बहुत ईजियर और कंफर्टेबल बना रखा है बेटा। आज तो ठंड से बचने के लिए हम लोग रूम हीटर चलाते हैं, ब्लोअर चलाते हैं। ओल्ड टाइम में पास में क्या हुआ करता था कि लोग कोल्स बर्न करते थे, वुड बर्न करते थे। आज भी देखोगे कि लोग वुड भी, जो विलेजेस एरिया है वहाँ आज भी आप देखोगे कि एट द टाइम ऑफ ए कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो लोग वुड भी बर्न करते हैं, क्योंकि जब वो बर्न होता है
सो उससे हीट प्रोड्यूस होती है एंड ड्यू टू दिस आल्सो वी कैन कीप आवर बॉडी वार्म। ठीक है, बहुत ठंडी पड़ती है ना, जैसे बनारस की बात कर लो, बहुत ठंडी पड़ती है ना, तो जगह जगह पे शहर पे आग जलवाई जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई, पुअर पीपल्स भी हैं, गरीब पीपल भी हैं, जिनके हाउसेज उतने अच्छे नहीं हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे बहुत ठंड पड़ती है तो हर शहरों में थोड़ी थोड़ी दूर पे आग मतलब लकड़ियाँ भी जलाई जाती हैं, जिससे कि भाई जिसे ठंड लग रही है वो अपनी बॉडी को वार्म कर सके। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये पूरा और हाइबरनेशन बता दिया, एग्जाम्पल वियर और लिजर्ड का तुम लोग को बता दिया। एट द टाइम ऑफ विंटर सम एनिमल गोज टू लॉन्ग स्लीप एंड दिस इज नोन एज हाइबरनेशन। आफ्टर दैट हमने आपके संग डिस्कस किया कि हमारी ईटिंग हैबिट और देखो क्लोथ स्टाइल भी चेंज हुए, क्योंकि अब हम लोग वुलन कपड़े पहनने लगे, ऐसा हम लोग समर में नहीं करते थे। ठीक है, तो लिविंग स्टाइल हमारा चेंज होता है सीजन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हम लोग हॉट ड्रिंक्स पीना ज़्यादा पसंद करते हैं एट द टाइम ऑफ विंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सीजन जो हम आपके संग डिस्कस करेंगे दैट इज द स्प्रिंग सीजन। अब जो बेटा ये स्प्रिंग सीजन है ना, इसे शॉर्टेस्ट सीजन बोला गया है। देखो ईयर में वेदर जो चेंज होते रहते हैं ना, तो कुछ लॉन्ग समय तक रहते हैं, तो इसीलिए वेदर सीजन की डेफिनेशन में मोर और लेस वर्ड यूज हुआ था। कुछ मोर समय के लिए रहते हैं और कुछ लेस समय के लिए रहते हैं। तो ये जो स्प्रिंग का सीजन है ये लेस टाइम का है, इसलिए हम इसे शॉर्ट सीजन ऑफ द ईयर भी बोलते हैं। और ये बात समझ में, इसे हम लोग शॉर्ट सीजन ऑफ द ईयर भी बोलते हैं। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। ठीक है, अब आ जाते हैं स्प्रिंग सीजन में। आफ्टर विंटर देर इज ए शॉर्ट सीजन कॉल्ड स्प्रिंग। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई कि स्प्रिंग दिस इज ए शॉर्ट सीजन। ठीक है, विंटर के बाद एक छोटा सा सीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग सीजन, और व्हेन इट कम्स जस्ट आफ्टर द विंटर। अब देखो जैसे फरवरी मंथ आ गई है और टुडे डेट 15 हो भी गई है। अब स्लोली स्लोली अब जो आपका ये जो समय चल रहा है, ये समझ लो आपका स्प्रिंग का ही समय चल रहा है। ठीक है, अब देखो डेज धीरे धीरे बड़े होने लगे। नवंबर दिसंबर जनवरी में लगभग 5 o'clock के बाद आपको बिल्कुल डार्क हो जाता था, लेकिन अब देखो 6 o'clock, 6 से थोड़ा अब तक भी डे रह रहा है। तो आप ये चेंजेस देख रहे हो। अब मॉर्निंग के समय 9, 10, 11, 12 मॉर्निंग के समय क्या है, काफ़ी वेदर क्या है, हॉट है। अब ऐसा नहीं है, हमने वुलन कपड़े तो पहने हैं, अभी पूरे ढंग से उतारे नहीं है वुलन कपड़े, लेकिन जितने ज़्यादा हम लोग अपने को ठंड से बचाते थे नवंबर या दिसंबर जनवरी के मंथ से, अब पहले जैसा वेदर नहीं रहा। अब वेदर थोड़ा हॉट भी है, तो डे और नाइट के समय वेदर कोल्ड है। ठीक है, डे और नाइट के समय वेदर कोल्ड है इस समय, और जो तुम्हारा आफ्टरनून टाइम ये सब ले लो तो उस समय थोड़ा वेदर अब हॉट भी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग, और स्प्रिंग सीजन जस्ट आता है आफ्टर विंटर। नाउ इट इज जनरली इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अब इसमें मार्च भी दिया है, देखो। अब देखो बेटा, इसमें मार्च वर्ड यूज किया है ना, ये जो बुक में दिया है ये ऑल सारे जगह को कंसीडर करके कह रहा है। ठीक है, अब जैसे हमारे जहाँ हम लोग वाराणसी में रहते हैं, ठीक है, वाराणसी में हम लोग रहते हैं, ये कैसे एरिया है, जो मैंने तुम लोग को डिफरेंस समझाया था ना वेदर और क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट क्या है, ऐसी चीज जो लॉन्ग समय से कई सालों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो हॉट एरियाज होते हैं वहाँ रेन नहीं होती, कि वहाँ विंटर नहीं होती, ऑटम नहीं आता, सारे सीजन आते हैं। बट यहाँ स्पेशली सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ कैसा वेदर है, वो हॉट है, और हजारों सालों से लॉन्ग समय से ऐसा ही होता जा रहा है कि इन एरियो में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट है, इसलिए क्लाइमेट वर्ड यूज हुआ।
क्लाइमेट होता है लॉन्ग समय से, और वेदर तो आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, टाइम टू टाइम, हावर टू हावर, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है। एंड ड्यू टू चेंज इन वेदर सीजन्स आर फॉर्म, इसीलिए हमारी कंट्री में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सीजन। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इट इज जनरली इन द मंथ ऑफ मार्च। किस मंथ में होता है ये? मार्च में होता है जनरली, इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने तुम लोग से यही डिस्कस किया था मार्च में, अभी भी मार्च, हाँ मार्च में देखोगे तो मार्च में जो वेदर होगा इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ठीक है, इस मार्च में ना तो बहुत हॉट होता है ना तो बहुत कोल्ड होता है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। जब डे और नाइट की लेंथ इक्वल नहीं रहती तब विंटर सीजन आता है, विंटर और समर। जब डेज लॉन्ग हो जाएंगे, नाइट्स स्मॉल हो जाएंगी तो समर आ गया, और जब नाइट्स लॉन्ग है और डेज आर शॉर्ट देन इज द विंटर। क्लियर? नाउ सी द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल होती है, किस सीजन में होती है? आ सकता है आपको एमसीक्यू में, टेल द नेम ऑफ द सीजन इन विच द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। सो स्टूडेंट योर आंसर इज, व्हाट इज योर आंसर? स्प्रिंग सीजन। एंड एक और आ सकता है आपके एमसीक्यू लाइक एक क्वेश्चन और बन रहा है इसमें से, टेल द स्टूडेंट विच सीजन इज नोन एज द शॉर्टेस्ट सीजन। तो वहां 2 ऑप्शन हो सकते हैं, अगर स्प्रिंग सीजन होगा तो भी राइट आंसर होगा और ऑटम होगा तो भी राइट आंसर होगा। इज इट क्लियर? और दिस डैश सीजन, एक क्वेश्चन और बन गया बेटा यहीं से, डैश सीजन इज जनरली इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में कौन सीजन होता है बेटा? दैट इज ए स्प्रिंग। ठीक है, क्योंकि ऑटम भी शॉर्टेज सीजन है, अभी हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आता है विंटर से पहले और ये आता है आफ्टर विंटर। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सीजन्स। इज इट क्लियर? नाउ सी, नाउ एंड व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस सीजन। इस सीजन की सबसे स्पेशल बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस सीजन? सो स्टूडेंट, दिस टाइम देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, गार्डन में बगीचे होते हैं ना, जहाँ पेड़ होते हैं बहुत सारे फूलों के पेड़, तो इस समय बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और दिस सीजन इज वेरी गुड फॉर द पिकनिक, बहुत ही प्लेजेंट सीजन है, पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। आप देखोगे फ्लावर्स में बहुत से बटरफ्लाईज है, बीज, मधुमक्खी, बिकॉज फ्लावर के अंदर उनका क्या है? फूड है। फ्लावर्स के अंदर उनका क्या छुपा हुआ है बेटा? फूड छुपा हुआ है। वो लो नेक्टर, नेक्टर जो कलेक्ट करते हैं ना वो फ्लावर्स के अंदर से करते हैं। ठीक है, सो वी एंजॉय वॉचिंग द बीज एंड बटरफ्लाई विजिटिंग देम, इट इज एन आइडल सीजन फॉर पिकनिक। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसी पैराग्राफ से, एग्जाम में एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच इज द आइडल सीजन फॉर द पिकनिक? योर आंसर इज स्प्रिंग। In which season you see lot of bees and butterfly visiting on the flowers? So which season? Then the answer is spring. And what was the name of the season in which we see lot of flowers in the garden? तो भी आंसर क्या होगा? स्प्रिंग। सो बेटा स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन में डिस्कस कर दिए, बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन टीचर इस ढंग से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग। एक रिकैप्चुलेशन करते हैं इसकी। ठीक है, आफ्टर विंटर विच सीजन कम, ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। आफ्टर विंटर विच सीजन कम, तो आपका आंसर होगा स्प्रिंग। सो इन द मंथ ऑफ मार्च विच सीजन, सो भी आपका आंसर होगा स्प्रिंग। When the days and nights are equal, then also your answer is spring. It is clear? What is the name of the month in which neither too hot nor too cold? Then also your answer is spring. Length of days and night are equal, then also your answer is spring. There are lot of flower in the garden, then also your answer is spring. When you see
bees and butterfly visiting on the flower. So again student, your answer is spring. Okay, and which season is ideal for the picnic? Again student, your answer is spring. So these type of MCQ question can be asked with this topic, that is spring season. Okay student, thank you.